Hello everyone, good evening, Jai Shri Krishna. I'm Khushi Sharma and I'm currently pursuing Cost and Management Accountant with my specialized graduation course in Accountancy and Finance. Today is a very special event and as we all are gathered here in Mumbai, Radisson Hall together to be a part of this webinar. We even have with us the managing members of the Dalit Samaj Committee Mumbai. Here we are more than 20 plus people attending this webinar jointly. And we feel very proud to see our young members of the community reach great heights. Such is the case of Ms. Arushi Sharma, who is the founder member of DITF and has been called as a guest speaker for IIM Institute Kozhikode. And she has also been called by various other prestige institutes like IIM Lucknow, IIM Indore, University of Stirling, Dubai, and many more. We heartily congratulate her for her success, and we wish her best of luck for her future endeavors. We have the shlok, which is even a slogan. We have taken this from Bhagavad Gita, chapter 2, verse 15. It is recited by Rajneesh Dadij. बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् योगः कर्मसु कौशलम् योगः कर्मसु कौशलम्. The man behind getting us all together. A big thanks to Devesh Uncle for bringing this webinar to this success. Devesh Uncle has started the ITF with a great mission and vision. The mission is to create a community of people who come together for a noble cause of economic empowerment, social development, knowledge, and service. Vision is to inspire lifelong learning, advance knowledge, and strengthen our communities. There are many previous events that have taken place in the ITF in last 7 months. More than 15 webinars have taken place. Few of them are Started Up, Work Towards Success, Career Guidance, Diwali Festival, Financial Bill, Preparing for Job Interview, and the webinar on obesity is the Silently on Rise was the first get-together webinar conducted in Rambagh Palace, Jaipur, where we had more than 12 plus members from all over Rajasthan to attend this webinar jointly. All of our community members shower so much love towards the ITF. Few of the testimonials are here with us today. This testimonial is given by Dr. Subhash Chandra Dadij. नमस्कार, मैं डॉक्टर सुभाष चंद्र दधीच विशाखापट्टनम वेस्ट जनरल सर्जन हूँ और लैप्रोस्कोपी भी करता हूँ। मैंने देवी जी के इन्विटेशन पे दधीच इंटरनेशनल ट्रेड फाउंडेशन को ज्वाइन किया है। यही काम ये फाउंडेशन आपके लिए करेगी। क्या आपके कौन से डिपार्टमेंट में स्किल डेवलपमेंट करना है वो आपको गाइड करेगी, सीनियर से मेंटरिंग मिलेगा और सबसे ज़्यादा ये है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ऑल द पावर इज विद इन यू, ओनली यू हैव टू यूटिलाइज इट। Take care, all the best. This testimonial is given by Rajesh Kumar ji. दादीज बंधुओं को मेरा राजेश शर्मा का नमस्कार। मित्रों, मेरा सौभाग्य है कि आज दादीज इंटरनेशनल ट्रेड फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म के द्वारा आप सभी से जुड़ने का सौभाग्य मुझे मिला है, आपसे बात करने का सौभाग्य मुझे मिला है। आदरणीय भाई साहब देवेश जी दादीज का बहुत बहुत धन्यवाद।
जिनकी सोच से ये संस्था आज बहुत छोटे से समय में छोटे छोटे कार्यक्रमों के थ्रू लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। इंटरनेशनल ट्रेड फाउंडेशन से शुरुआत से जुड़ा हुआ हूँ। ये जो सोच देवेश भाई साहब के दिमाग में आई थी उस समय मैं उनके पास ही था और हमने मिलके इस संस्था को आगे बढ़ाने का प्रण लिया था। ये एक ऐसी संस्था आने वाले समय में दादी समाज को मिलेगी, इसका काम सिर्फ दादीचों को जोड़ना है, चाहे वो किसी भी वर्ग, किसी भी फील्ड, किसी भी समुदाय से हो। दादीच और दादीच के लिए ही ये संस्था काम करेगी और उसी दिशा में देवेश भाई साहब काम कर रहे हैं। अभी तक जितने भी वेबिनार हुए हैं, जितनी भी चीज़ें कार्यक्रम इन्होंने किया है, सब एक से बढ़ के एक, सबके टॉपिक एक से बढ़ के एक बहुत मजबूत संदेश समाज में, समाज के युवाओं में और प्रोफेशनल्स में जा रहा है कि हमारा दादी समाज भी इस तरह की संस्था बना सकता है। नहीं तो आज तक हम देखते आ रहे हैं कि हमारी संस्थाओं में सिर्फ आपसी ईगो, झगड़े और इस तरह की चीज़ें होती हैं। ये एकमात्र ऐसी संस्था, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में ये नई ऊंचाइयों को छुएगी और दादी समाज के युवाओं को एक नया आयाम देगी। वो दिन दूर नहीं है जब दादीच समाज का व्यापारी दादी समाज के लोगों के साथ व्यापार करेगा। वो दिन दूर नहीं है जब दादी समाज का प्रोफेशनल दादी समाज को सपोर्ट करेगा। और बहुत for nice introduction and brief about the DITF. Devesh ji has introduced in last 6 months, and lots of very good subjects webinar has been conducted so far. Today we have come across with the pertinent information technology world. The subject is the cyber security. It means the security to the cyber world. And when we talk about the cyber world, the devices or the computer peripherals, and the network we have created has to be secure and prevented from the malicious attacks from the undesired user in the network. So for the corporate world takes cares about this, and they hire the separate network administrators or network team, and they also have their own intelligence to prevent from the such attacks. But when we talk about the cyber security, there are a lot of threats. So these threats can be in the form of the cyber crime, in form of the cyber attack, or in form of the cyber terrorism. So sometimes some financial gains are behind the cyber attacks. Sometimes some political moves are behind this. So one country, another country's political domain, and to get the confidential informations. And sometimes it is cyber terrorism to prevent or to stop or prevent the mission of some particular government army project or maybe space program. These are the various things. So today's objective is to cover the common being who is front facing, using their mobile phones, using mobile banking, and do not know the bits of this cyber world, and time they lose their money. Our two pertinent speakers, Sushilji Dadich and Niranjan Dadich, will be covering this today's session. So I briefly introduce Sushilji. He has 22 years of information technology business in the industry, and he is the director of the Commonwealth Solution currently. Very good leadership skills since childhood, and been awarded from the President R. Venkatraman in 1989, being the scout leader. He is the man and the Tally partners. If I talk about Niranjan, is a very young chap, and he's from our team. Is working currently in the codevirussec.com, and is a particularly ethical hacker and cyber security analyst. He can conduct the can test the systems, and he will be covering part of the today's session. So Sushilji, my questions would be to you today. Cover what about the cyber security, why it is important subject in today's world for the common being. Most of the team from the Dadich group today are with us, and they like to know about the cyber world and cyber security.
what is the subject is about. You can cover this in your today's session. Over to you, Sushil ji. Thank you very much, Surendra ji. Welcome to you all on this historic day of DITF. What an excellent startup by Khushi. A big thanks to DITF founder Sri Divesh ji. Thanks all of you being the part of this webinar today. Friends, before some time back, somebody was playing with the screen. Some scratch marks were coming onto the screen, but you forget that you are sitting with a cyber expert. We have captured your IP, and I think we are going to take the action very soon onto this. Today I'm going to speak. I'm sorry, I will not be speaking. We will be talking about a bloodless war, that is cyber security. My sincere request to you all to do post your queries in the chat box so we can answer later. We'll be keeping award-winning question answer session where 2 to 3 questions will pop up on the screen with the answer options of A, B, C, D. And you have to just write into the chat box the option number A, B, C, D, and all. So the final winner we will be declaring at the end of this program. So let's concentrate today's interesting topic. The world cyber security become more necessary after the world got hijacked by this pandemic, COVID-19. Dear Zoommates, this compelled us to work from home, to study from home. Everything was from home. These have given an open field to cyber criminals under the disguise of COVID-19. They are luring us to exploit our vulnerabilities. In today's Times of India, on page number 7, if you'll see, there was a news for the social media's unsafety net, where highest cyberbullying rate is in Maharashtra, followed by Delhi, UP, Karnataka, and West Bengal. Before we start, I would like to show you the live cyber threats worldwide, how it is happening. I request Surendra ji to please start that URL so that people can see how the threats are happening throughout the world. I'll tell you, this is the live. Look at over here, how the threats are going. This is live and the actual data of today. You can see on the bigger screen also the sitting audience over here. See, the US attacks are coming from here to there, all the countries. So how fast it is happening? That's the reason we have come up on this point of the cyber security. Cyber security is itself explanatory, where we need to secure our digital life. The era of digital platform is known as cyber युग. भगवान का नाम बाद में, सुबह उठने के बाद सबसे पहले मोबाइल का अलार्म और मोबाइल के SMS, ये हमारी दिनचर्या है, ये हमारा जीवन है। ऐसी एक चीज जिसको बिना नहलाए धुलाए, बिना साफ किए आप मंदिर में भी लेकर जाते हैं, किचन में भी लेकर जाते हैं, शमशान भूमि में भी लेकर जाते हैं, इसको शुद्ध करने की जरूरत नहीं है। The word internet enter in the phrase of roti, kapda, makan. It has been replaced by the internet first, then roti, then kapda, then makan. The terminology of our life in day-to-day life is become URL, chat, social media, Facebook, email, online games, online business, shopping, in all on one click. In terms of India, by 2021 and 600 million people will be online. I mean to say that they will be onto the internet to get everything on their fingerprint, and Mission Digital India will be get success. Simultaneously, we need to think about securing ourselves with cyber security. First slide, I would like to tell Surendra ji to please give me the first slide. See my first slide, which is elaborating all facts related with cyber security, where all the words you are seeing, social network, cyber crime, Internet of Things, infections, this and everything related with the cyber security. Friends, second slide, please. Next. These are the points we are going to cover in today's webinar. Next. When we are talking about the cyber security, cyber is our devices, communication system, and informations. And security, of course, we need the security for the confidentiality, integrity, and availability.
Friends, our entire privacy is at risk. Google knows where and what we are doing in the world of technology. You might have noticed in your inbox the timeline update from the Google, where the Google is saying that which city you have visited, which vehicle you have gone, how many kilometers you have covered by running or by walking or by car, or this way our entire privacy is into the Google. All the Android devices what we are using are giving the Google the complete data of ours. Now, in the cyber security, most of the time, what we have noticed that we are only concentrating about the computers, laptops, and network, cyber attacks and all. Friends, I'm talking about something different today. Please listen very carefully. Next slide, please. A very important point we need to understand with regards to cyber security, I will try to explain you with example. Let's come on to the Internet of Things. On the screen, you can see lot of devices. These devices are basically Internet of Things. Broadly refers to devices and equipment that are readable, recognizable, locatable, addressable, or controllable via the internet. This incorporates physical objects communicating with each other, including machine to machine and machine to people. IoT devices are used in multiple sectors, are industries, including IoT consumer products, including smartphones, smart watches, smart homes. Everything is become so easy to us. With one device, we are controlling everything. Even in the business and the government is also using the same. Now let's go on to that. The government is using the traffic congestion and natural disaster alerts using this IoT. So basically, IoT, I will explain you in a very simple example. We have home router. In the home router, our all informations are there. What sites we are visiting, what are the appliances, what are the gadgets is connected with that router. Everything is coming onto that. So the data is getting theft. The physical harm is there with those. An improperly secured device can be exploited to interfere with the patient's medical care also. Threats to other. Insecure IoT devices are vulnerable to being hijacked and used in botnet. What is this botnet? The botnet is a collection of malware-infected internet-connected devices, possibly numbering in the millions, controlled from a remote location. Next slide, please. See, this is all about the IoT. Everything is so easy. We are having a smart supply chain, smart home, smart wearables, the watches what we are hearing. Next slide, please. Our digital life, you can see, this is our digital life. Next. Now I'm playing a video. Let's have some fun onto this video. And look at how our life is. Audio we can't hear. Next slide. This is our digital life. We need to secure our everything, mail system. Next slide, Surendraji. Yes, Sushil, you can continue. Yeah, the next slide I wanted. Yeah, now see, I'm showing a chart over here where 31% of the cybercrime is happening through phishing, hacking, and malware. Then individual mistakes are there, external theft is there, vendor. The elaboration on these points, my colleague will be giving you in this session only. So very important part what we have to notice is the phishing and hacking attacks.
In my next slide, if you will see, next slide, Surendraji. We all are aware, Lakshman Rekha. लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींच दी थी, लेकिन सीता मैया क्रॉस दैट रेखा, क्या हुआ था वो हम सबको पता है. सो सीता जी तो वापस आ गई थी, लेकिन फ्रेंड्स बिलीव मी, आपका जब डेटा चला जाएगा तो दैट विल नॉट कम बैक टू यू. नेक्स्ट प्लीज. सुशील जी, तो लक्ष्मण रेखा हम सब के लिए क्या है, आप जरा इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए. प्लीज गो ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. ऑफ कोर्स वी विल बी गिविंग द आइडियाज अबाउट इट. जी जी. See, beware of spoofed website. The word spoofed may be new for you, but what is the spoofed website? This is a phishing of fraudulent emails, text messages, phone calls, and social media. We all are connected with these things. So we have to be very careful about it. In the next slide, I'm showing you. It's a Facebook page. You are getting one SMS that one of your friend has joined the Facebook and want to become your friend. You'll be crazy to just click on that. The moment you are clicking, this page gets opened. You are putting your ID and password over here, and this ID password gets captured to the hacker, and hacker steals your all privacy. He hacked your Facebook page, and maybe he will be using for some wrong purposes. Similarly, in the next slide, if you will see, there's the Amazon page. You are getting some gift message on the Amazon the moment you're coming. Please be careful. Look at on the URL what is written. It is not Amazon. There is only some spelling error is there, and these are the hacking sites, and this is phishing actually. So that's the reason I explained these points to you for keeping yourself safe online. Next. See this new message spreading throughout India. We have identified that you are eligible to apply for your vaccine. Of course, we all are in such a bad condition currently due to the corona epidemic. We will click on this and we will be hacked. Similarly, the delivery messages are coming. These are the fraudulent messages, text messages. Similarly, the emails comes, and into the social media also we are getting these kind of messages. Next, please. So for the children's, I have very good slide this, that children should be stay safe. Don't give your personal information to people you don't know. Don't meet onto the social medias and all. Nowadays, children are playing online games. In the online games, if you will see, many children from the multiple cities and the countries, they are playing together. So I warn them to please don't go and meet the unknown people. Do not accept the without use files, which is not of useful of yours. Check the reliability of the website. And in case if anything happens, please report to your parents. Next, please. Now I'm coming on to that Surendraji's point. Surendraji, the point number one, what I mentioned, that while going into the banking, shopping, and paying all confidential sites, please check the URL. It should be HTTPS. HTTPS is a secured layer, which is, in our technical term, we say SSL layers. So the websites who are having the SSL layer, we should go on to those sites only. Next point, I have the password. Password, we are keeping of the date of birth, our name, children's date of birth. Please do not keep that. Keep it alphanumerical along with some special characters. One very important point, we have our IT, we have our Facebook pages and all. Every places we are using a single email ID, which I'll advise you, all your important things, you keep it on your own mail ID, and please do not use that primary mail ID for the social media and all. This is very important point. Please keep in your mind. Avoid using, we have the Indian nature, free website, free Wi-Fi. Go into the saloon, Wi-Fi free hai bhaiya. We are just connecting to that free Wi-Fi. Please do not use the free as much as possible. Even in the hotels also, please do not use the free website, free Wi-Fi, because your device is getting connected via the IP and your data can be stolen over there.
We are very happy that I have 3 mail IDs. I have 4 mail IDs. Friends, Jummets, the number of mail IDs what we have, please try to keep 1 or 2 mail IDs. Do not keep unused, delete all unused mail IDs, unused accounts in the Facebook. Do not keep multiple accounts. You will be in the trouble. Before downloading any software, please take care of that. Access your bank websites by typing the URL. Never click onto the particular URL and go into the bank's website. The information which is very important, because your bank sites are having your credentials which you have to take care. Regular backup is of course important. Take an external media and keep the backup. Next slide, please. Sushilji, is it good practice to save the URL and then you can use it on the next every time when you go for the banking site? Sir, I will say that always type the URL. Never go into the saved URL, because you don't know who had set the cookies in your browser. So you will be in trouble. So better to type the URL whenever you are going into any of the website. Great, thank you. Next, please. Next, please. Yes, this is a very important, what you can see onto the screen. Friends, you are going into the Google Chrome. The moment you are typing, everything comes automatically. You are typing your email ID and it's asking which email ID you would like to go. And you click on those email IDs and the password comes automatically. It gets saved into your Chrome history. I'm requesting you to please use this browser system incognito mode. This incognito mode is very important when you are browsing any confidential things, even your bank, even your account, even your social media account. Your browsing history will not be saved in this. Cookies site data will not be saved in it. Informations, whatever you are entering in different type of forms, will not be captured by your browser. So whenever you are into the public place, please take care of this. Next, please. This I have almost covered. Don't keep yourself logged in into the browsers. Always type the password. Pop-ups you have to take care, because nowadays digital media is there. In the digital media, everything is onto the advertisement. You go on any web page, Google is giving a lot of pop-ups for the advertisement and they are making money from this. So please avoid this. Do not go into the inappropriate websites. Next, please. Next slide, please. Now, the career in the cyber security, again, I say that it will be elaborated by colleague. Lot of opportunities are there in the cyber security and the cloud. People has opted cloud system after this pandemic. So you have opportunities. I will appeal to my all the Dadich members, the students who wants to go for a good job. Please go ahead with this. Cisco, Forsenic computer analyst, IT security analyst, penetration tester, ethical hacker. Ethical hacker. Excuse me, sir. Yes, sir. Please tell me. Sir, can I go in the career related to cybersecurity with PCB in class 12? You can go, but class 12, it is the minimum criteria has to be the graduation part. You have to clear the graduation part. For the Cisco, you need at least 2 to 3 years experience into the IT field. So, No, sir. I mean that can I go into the career without maths? yes, you can. You should be having the IT knowledge. Okay, sir. Yeah. Next slide, please. Here I'm ending my things. Friends, whatever the security you keep, but Saudhani hati, Durghatna ghati. Take care of your credit cards, debit cards, ATMs, online banking and all. But Saudhani mat hataiye, Durghatna mat ghatne hatiye. Thank you very much. Thanks to all of you. Over to Surendra. Yes, thank you very much, Sushilji.
Now, I have some other questions for you, Sushilji. Being online, the most common use of these days are the visiting the social media sites, visiting banking sites, and using the mobile, the banking apps on the mobile phone and use the banking transactions. How safe it is to go with that? And the second point, similar to that, every day since Modiji's era and their push to the digitalization, the money transfer online. So these days, every payment, even the sabji wala and the kulfi wala, they also accept the payments using the Paytm or the Google Pay. So what's your recommendations to go on these banking apps as well these payment sites, Paytm, Google Pay, RuPay, or maybe this WhatsApp Pays these days? So this has become very popular, and now people do not carry the cash in their pocket and normally pay through these digital transactions. So what is your views? Maybe Niranjan or Sushilji can answer on this. See, in the digital media, we have to be digitalized ourselves. We need to pay through our mobile. Whatever the devices we are using, we have to keep updated those devices. While downloading the apps, we have to take care that the bogus apps we should not type, we should not download, and we should take care of that. That is the only option. That's the reason I've said that, of course, you have to be careful when you are on the net, and don't keep your mobile always on with the internet. Sometimes give us the relaxation to your mobile phone also. So every time when you go online, the files gets updated automatically, so that you have to take care. Surendraji. So do you suggest to disconnect your internet connectivity? Even your Wi-Fi router should be shut off by the when you are sleeping, or maybe you disconnect your data connection every day in the night? What is your recommendation? Not in the night. When you don't have the use of the data, please close your data connection, cross your Wi-Fi connection. This way you can safeguard yourself. When you want to use, the moment you will come in the connection, come in the Wi-Fi, your everything will be updated. So you have to take care of that. Okay, now the topic of the data which you recently told about, the data being saved every time on these host servers of the providers, the Facebook or the WhatsApp. Maybe please rest of all the team, if you are not, please mute yourself. Sir, can you tell me which is more better, Google Pay or Paytm? Google Pay or Paytm, both are safe if you have downloaded these apps using your Google Play Store or iOS Store. So both these app companies like Google Pay, if you're talking, they all are the banking things, and they are taking care of the security. Just let me mute all the people. Somebody is disrupting in between. Okay, so my point was the data privacy and the data protection. Now everyone is very sensitive on their data, maybe photographs or your notes on your phone or your emails, or maybe the other sensitive information you are keeping in your mobile phone. Now the days are gone when you were keeping all the information in your diaries. Everything is stored in your phone. So how better we are managing the data, and the laws or acts or policies in the government which protects from these in case a theft or cyber crime is occurred. So maybe Niranjan, can you tell about this? What are these various malicious attacks, and what are these laws protecting us? Sir, for taking me in the cyber security webinar. सर अब बात रही कि हम लोग जैसे पेमेंट्स यूज करते हैं, इनमें क्या कितनी सही रहती है, जैसे आपका क्वेश्चन था व्हाट इज डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, और ये सब। तो सबसे पहले सर अपन स्लाइड से
तो सर सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन रहता है वो ये रहता है व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी इज रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम्स। ठीक है, अपने डेटा के बारे में, अपने डेटा का प्रोटेक्शन, अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, इनके बारे में हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं। इन सब सिक्योरिटी के लिए जो भी हम स्टेप्स लेते हैं, इनके जो थ्रेट्स होते हैं उनसे बचने के लिए हम जो सिक्योरिटी यूज करते हैं उसको हम साइबर सिक्योरिटी और ऑनलाइन सिक्योरिटी के रूप में हम बोलते हैं उनको। ठीक है सर, तो एक तो ये रहता है, इसके अंदर सर साइबर सिक्योरिटी जो साइबर थ्रेट्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं सर। उसमें हम यूज करते हैं एज ए कंप्यूटर एज एन वेपन और कंप्यूटर एज एन टारगेट। सर कंप्यूटर एज एन टारगेट में हम क्या लेते हैं, लाइक एक कंप्यूटर है या फिर एक मोबाइल, किसी पर्सन का मोबाइल है, हमें बस सिंपली उसको हैक करना है, तो वो होता है कंप्यूटर एज एन टारगेट। बट कंप्यूटर एज एन वेपन, इसका सेंस ये है कि मैं किसी और का कंप्यूटर, लाइक सर आपको हैक कर रहा हूँ और किसी और का सिस्टम यूज कर रहा हूँ, तो सर उसमें होता है कि कंप्यूटर एज एन में वेपन यूज कर रहा हूँ उसको। लाइक बंदूक किसी और की है, कंधा किसी और का है और हार्म कोई और हो जा रहा है। और ये जो चीजें की जाती है ये मेनली की जाती है जो कंप्यूटर की सिक्योरिटी का CIA है, यानी कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी, इनको हार्म करने के लिए। अगर इन तीनों में से कोई भी चीज किसी आदमी की हैक होती है तो उसे हम लेते हैं साइबर क्राइम के अंदर। अब जैसे कि सुशील सर ने बताया कि जैसे अपन फोन पे और गूगल पे यूज करते हैं, इनके ऊपर भी बहुत से थ्रेट्स रहते हैं। आजकल हम मेनली ये देखते हैं कि फिशिंग वेबसाइट्स बहुत ज्यादा होते हैं और वो फिशिंग वेबसाइट्स सबसे बड़ा अटैक है, यानी सबसे जो ज्यादा बड़ा अटैक कवर करता है वो हम फिशिंग वेबसाइट्स में लेते हैं, जिसमें 39 to 40% जो अटैक होते हैं वो फिशिंग होते हैं। और सबसे ज़्यादा हार्मफुल भी यही है क्योंकि ये आपके बैंकिंग ये मोस्टली किए जाते हैं, आपके अकाउंट्स के डिटेल्स जो होते हैं उनको थेफ्ट करने के लिए, आपके जो इम्पोर्टेंट डेटा है उसको एक्सेस ले लिया जाता है, इससे आपके ईमेल्स, पासवर्ड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये एक बहुत कॉमन अटैक है जो कोई भी कर लेता है और बहुत इजीली आपके जो पासवर्ड्स है उनको चुरा लिए जाते हैं। इसका मैं आपको एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दे दूंगा कि ये कंडक्ट होते कैसे हैं, कोई भी कैसे इतना इजीली कर जाता है। ठीक है, और इसके लिए सर जो प्रोकेशंस रखे जाते हैं मैं आपको उनके बारे में भी बता दूंगा कि उनके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पानी सर आप हमें प्रैक्टिकल भी दिखाओगे इसका? बिल्कुल, क्योंकि मैं साइबर फोरेंसिक्स से हूँ, मैं अभी पुलिस के साथ भी काम करता हूँ, तो हमारे लिए ये थ्रेट्स रोज आते हैं, तो इनका प्रैक्टिकल कैसे डेमोन्स्ट्रेशन होता है मैं वो भी दिखा दूंगा, इनको रोकना कैसे होता है और ये कितने बड़े थ्रेट्स हैं। तो सोशल मीडिया है सर, सोशल मीडिया ही सबसे बड़ा थ्रेट है। अगर आप सोशल हो तो यू आर नॉट सिक्योर एट ऑल, सिक्योरिटी इज एन मिथ। अगर मुझे अभी देवेश सर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो तो मुझे कोई भी एल्गोरिथम लगाने की जरूरत नहीं है। आई सिंपली गो टू हिज फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, और उन्होंने वहाँ पे सब कुछ वैसे ही मेंशन किया हुआ होगा कि वो क्या करते हैं, क्या होता है, क्या नहीं करते हैं। तो सिंपली मुझे उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक सिनेरियो दे देता हूँ। यस सर, पीपल की इंफॉर्मेशन निकालना कॉल रिकॉर्ड से कैसे कर सकते हैं हम लोग? ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगा कि वो पीपल की इंफॉर्मेशन कैसे हैकिंग होती है। हैकिंग के कुछ फेसेस होते हैं, उनके अंदर जो फर्स्ट फेस होता है वो होता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग। लाइक अगर आप किसी आदमी को किसी के ऊपर अटैक करना है तो सबसे पहले आपकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग करेगा, आपके बारे में जितनी हो सके उतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करेगा, आप कहाँ जाते हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। अब अभी कुछ 2 महीने पहले की बात है, गुड़गांव पुलिस के अंदर जब मैं था वहाँ पर एक केस हुआ था। वो केस क्या था कि एक 7 साल का लड़का था जिसकी किडनैपिंग हुई थी। अब उसकी किडनैपिंग इतनी स्मार्ट थी कि पुलिस को भी उसको ट्रैक करने में टाइम लग गया कि हुआ कैसे एक्चुअली है। अब बेसिकली हुआ क्या था, उसकी जो मदर थी वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया फ्रीक थी, तो उन्होंने क्या कर रखा था कि आजकल सब होते हैं, हम लोग से करते हैं, हमारे घर में भी सब लोग ऐसा ही करते हैं। तो उन्होंने बेसिकली क्या किया हुआ था, जब लड़का उठता था उठने से सोने तक की उसकी सारी एक्टिविटीज की वो स्नैप्स लेना, उनको सोशल मीडिया पे पोस्ट करना, लाइक सबको बताती थी वैसे कि ये ऐसे ऐसे करता है, लाइक इसको ये पसंद है, ये इस टाइम पे ये खाता है, ये इसका स्कूल का टाइमिंग है, वो ये करता है। अब 7 साल का लड़का क्या ही समझता है,
तो बेसिकली उसने किया क्या, अब तो किडनैपर था, किडनैपर मेरा वही ध्यान रखना। हाँ हाँ बोलता हाँ है। सर प्लीज म्यूट कर दोगे आप? तो बेसिकली किडनैपर करता क्या था, उन्होंने कुछ 2 हफ्ते तक वो सारा उनकी जो सोशल मीडिया एक्टिविटी थी उनको मॉनिटर किया, उन्होंने इंफॉर्मेशन गैदरिंग की कि ये क्या क्या करता है। अब उसके बाद उसने क्या किया, जब वो स्कूल जा रहा था, स्कूल में जैसे ही वो उतरा, अब उसको पता था कि इसको चॉकलेट आइसक्रीम बहुत ज्यादा पसंद है, तो बेसिकली उसने उसको चॉकलेट आइसक्रीम दिखाई। अब 7 साल का बच्चा क्या ही समझेगा, और जैसे ही उसने दिखाई वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ और उसने उसको किडनैप कर लिया। अब दूसरा माला ही है। अब ये है सोशल मीडिया का सबसे बड़ा थेफ्ट, कि सोशल मीडिया कितना हानिकारक हो सकता है, कितना हमें इस पे कितना प्रोटेक्शन रखनी पड़ेगी, कितना इस पे सिक्योर है। इफ यू आर ऑनलाइन यू आर नॉट सिक्योर एट ऑल, अब बिल्कुल भी सिक्योर नहीं, ठीक है, चाहे आप फोन पे यूज कर रहे हो, यूज कर रहे हो। जो करंटली जैसे चल रहा है, तो अभी 2 अटैक सबसे बड़े चल रहे हैं, एक चल रहा है मिंत्रा का फ्रॉड और एक चल रहा है अभी पतंजलि का। पतंजलि के नाम से बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं और मिंत्रा के नाम से चल रहे हैं, क्योंकि और अभी 2 दिन पहले की बात है जब पंजाब नेशनल बैंक है वो खुद हैक हो गया था पूरा, ज्यादा नहीं बस 2 ही दिन पहले की बात। उनका जो कस्टमर केयर का नंबर था वो हैक हो गया था और उनके नंबर से किसी और को फोन जा रहे हैं और वो डिटेल्स सेव कर रहे हैं। लाइक आप फोन कर रहे हो, आप गूगल से नंबर उठा रहे हो पीएनबी का, आप पीएनबी पे कॉल कर रहे हो, लेकिन आपका नंबर वहां पे ना जाके किसी अन्य पर्सन के पास जा रहा है। तो एक ये होता है सबसे बड़ा। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड, एक प्रैक्टिकल। एक सर अपनी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और हैकिंग सर की जा सकती है एकदम इजी से। और सर आजकल नॉर्मली सर वेबसाइट्स है, देयर आर मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स ऑन इंटरनेट सर, जैसे हमारी भी अभी वेबसाइट आई है तो सर सब तक सर बोल रहे थे सुशील सर, तब तक मैं उस वेबसाइट के अंदर वल्नरेबिलिटी ढूंढ रहा था सर। तो मैं अभी एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूँ सर, आप मुझे राइट्स देंगे सर स्क्रीन शेयर करने के? Niranjan, if you can share me the URL on the WhatsApp or maybe I can share on the screen, अगर आप वो दे दोगे तो चलेगा, मैं दिखा सर वो दे सकता हूँ, बट सर जो मैंने DITF के अंदर एक छोटी सी वल्नरेबिलिटी है सर, लाइक बड़ी नहीं है बट एक को मैं वो शो कर सकता, और 2-3 चीजें हैं सर। मैं अगर अपने सिस्टम पे चलाता तो सर किसी को हार्म नहीं होता, क्योंकि सर आई एम यूजिंग लिनक्स और आप सभी का शायद सर विंडोज होगा, तो विंडोज पे वो एक्ट करेगी। और मेरे सिस्टम पे maybe the admin, I'll request to the Zoom admin in this call, maybe Kushi or who is there, maybe Kiran ji, if you can help Niranjan to make him share the screen or assign him the rights. सबसे पहले ये सर ने अभी बताया था कि आप बिना फालतू किसी भी वाईफाई से ज्वाइन हो जाते हो, लाइक आपको गए, आपको फ्री वाईफाई मिला तो आप ज्वाइन हो गए, बस फ्री का डेटा मिल रहा है, ठीक है। ये सर हम सबकी मेथोलॉजी रहती है, हम लोग सबको फ्री का चाहिए होता है, क्योंकि सर इंडियन एक तो इंडियंस है और ऊपर से सर तो ये एक एटीट्यूड रहता है या फ्री वाला, कहीं से बस फ्री का मिले, कहीं से मिले, ठीक है, क्योंकि मेहनत नहीं करनी होती ना सर। तो सबसे पहले ये एक डिवाइस आता है जिसका नाम होता है सर वाईफाई पाइनएप्पल। ये बेसिकली क्या करता है सर, ये एक हॉटस्पॉट क्रिएट करता है और जैसे ही आप इससे कनेक्ट होते ही ये आपको सारा का सारा जो डेटा है वो स्टोर करेगा और आपको भेजेगा। लाइक आप अगर इंटरनेट पे कुछ भी सर्च कर रहे हो तो ये एजेंट मीडिएटर यूज करता है, ये अपने आप को एक मीडिएटर बन जाएगा और ये करेगा आपकी स्नाइपिंग, यानी आपके बीच में रह के आपके जो डेटा है वो उसको इकट्ठा भी कर सकता है, उसको देख सकता है कि आप क्या चला रहे हो, कौन सी वेबसाइट विजिट कर रहे हो, कौन सा डेटा डाउनलोड कर रहे हो, और तो और सर अगर कुछ हो तो वो आपका डेटा मैनिपुलेट भी कर सकता है। अगर आप किसी को हाई भेज रहे हो तो वो उसको आगे करके कुछ भी उसका वर्ड भी चेंज कर सकता है। तो सर इतना हार्मफुल हो सकता है कि आप किसी भी वाईफाई से ज्वाइन होते हो अगर रेंडमली, क्योंकि सर आजकल साइबर अटैक्स एकदम मिनिमम होता है और हम लोग कैच ही नहीं कर पाते कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा सर। और ये सर एक डायरेक्ट डिस्क्लोजर की वल्नरेबिलिटी है जो सर ये देखिए सर DITF इंडिया, और सर ये इसने मुझे मिली अभी भी सर, आप देख पा रहे हो सर। इसमें सर मैं जाऊंगा पूरी की पूरी जो डायरेक्टरी है सर, जो ये डायरेक्टरी जो मेन डायरेक्टरी रहती है WP एडमिन की, वो मेरे पास पूरी की पूरी पड़ी हुई है। इसके अंदर मुझे कुछ भी निकालना है, कुछ भी निकालना है, सारी इमेजेस एक जगह पे कहीं से भी, तो इसके थ्रू सर मैं कहीं भी अंदर जाके एक्सेस इसका ले सकता हूँ। अब इसको मैं अगर हटाता हूँ तो ये अपनी वेबसाइट खुल जाएगी सर।
सर मतलब मैं डायरेक्टरी के अंदर था, तो इसमें एक डायरेक्टरी डिस्क्लोजर की वल्नरेबिलिटी है सर, इसको पैच कर दी जाएगी सर। ठीक है आप ओके ठीक है। निरंजन, वेरी वेरी गुड एग्जांपल यू हैव गिवन। आप ये बताएंगे कि मोबाइल के ऊपर मैं जो भी ओटीपी मैसेजेस रिसीव करता हूँ उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, और मेरे पास बहुत सारी शॉपिंग साइट से मैसेजेस आते हैं, हाउ टू स्टॉप देम। क्या मुझे मेरे मोबाइल नंबर जब मैं शॉपिंग करने जाता हूँ तो शुड आई शेयर माय मोबाइल नंबर, क्या उसका मिसयूज होता है? इनके बारे में थोड़ा आप बताएं। बिल्कुल सर, डेटा इज मनी। आज का दिन को जो चल रहा है वो है इंफॉर्मेशन इज मनी और डेटा इज मनी, ये हमारा एक स्लोगन रहता है। अब आपका डेटा आप कहीं पे भी जाते हो, आप कहीं पे भी देते हो फोन नंबर, तो उसके लिए वो आपके लिए हेल्पफुल भी है और हार्मफुल भी है। हेल्पफुल कैसे सर? जैसे आपको स्नैपडील से आप ज़्यादा शॉपिंग करते हो, या आप कोई जैसे रिलायंस ट्रेंड से आप शॉपिंग करते हो, आप वहाँ जाते हो, आपने वहाँ पे नंबर दिया, तो आपका एक वहाँ पे डेटाबेस होता है जिसमें आपका नाम रजिस्टर हो जाता है। उससे वो लोग आपको बहुत सारे ऑफर्स भी देते होंगे कि अगर आपने इतनी शॉपिंग यहाँ से कर ली है, क्योंकि उनका एक डेटाबेस तैयार हो रहा होता है वहाँ पे, तो उन्होंने वो आपको देंगे उसके लिए ऑफर्स कि आपने 10,000 की शॉपिंग कर ली, अच्छा ठीक है, आपको 1,000 रुपये का फ्री दिया जाता है। तो वो आपके लिए एक सर बेनिफिट भी है, ठीक है। और एक बेनिफिट ये होता है सर, जैसे स्टूडेंट्स लाइफ है सर, स्टूडेंट्स लाइफ में हमको कभी कभी कोचिंग सर्च करनी रहती है, तो हम आजकल सिंपली क्या करते हैं सर कि जैसे मुझे अगर साइबर सिक्योरिटी की कोचिंग ढूंढनी है मेरे आस में, तो मैं हर किसी को फ़ोन नहीं करूँगा। लाइक ऐसे नहीं कि गूगल पे निकालूंगा और मैं सबको सर्च करके ऐसे करूँगा, नहीं। मैं सिंपली क्या करूँगा, आई विल कॉल जस्ट डायल, और मैं जस्ट डायल को बोलूँगा मैं इस एरिया में हूँ और मुझे इसी एरिया के अंदर जो भी है उन सबकी मेरे को डिटेल्स चाहिए। अब जस्ट डायल क्या करता है, वो हमें डिटेल्स देता है, लेकिन हमारे साथ साथ जो हमारे नंबर है वो जितने भी साइबर सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट है उन सबको भी फॉरवर्ड कर देता है। तो इससे क्या है कि आपके पास फोन सामने से आता है उन इंस्टीट्यूट्स का, एक बेनिफिट ये। अब जो हार्मफुल चीजें ये है कि जो डेटा जैसे अभी 3 बिलियन लोगों का क्रेडिट कार्ड डेटा जो है वो स्टील हो गया था। स्टील कैसे हुआ कि कोई भी एप्लीकेशन है जिसके अंदर अपन डेटा अपना जो डालते हैं, लाइक क्रेडिट कार्ड डिटेल्स डाली, और उसके अंदर कोई भी वल्नरेबिलिटी मिलती है, कोई भी दिक्कत मिलती है, तो हैकर्स जो रहते हैं वो उसके लिए रेडी रहते हैं। कहीं से कोई बस मिले, उन्होंने मिला, और जैसे ही उन्होंने मिला उन्होंने सीधा का सीधा डार्क वेब पे पोस्ट कर दिया। अब सर आपको डार्क वेब के बारे में शायद पता नहीं होगा, पर डार्क वेब के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। जब हम यूज करते हैं सर, कैन आई विजिट डार्क वेब विद नॉट वीपीएन? डार्क वेब आप विदाउट वीपीएन भी यूज कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं है, बट अगर आप वीपीएन से जाते हो तो आप वहाँ सिक्योर हो। ऐसा नहीं है कि आपको डार्क वेब पे जाना नहीं चाहिए, डार्क वेब पे आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलती है, आप वहाँ जाओ, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वहाँ पे जाके कोई भी, एक तो लाइक कोई इलीगल वेबसाइट्स हो वहाँ पे, क्योंकि इलीगल वेबसाइट और सब कुछ मिल जाता है वहाँ पे, तो आप उनके ऊपर कोई भी एडिशनल लिंक के ऊपर क्लिक ना करें, वहाँ से कुछ डाउनलोड ना करें, और कोई भी चैट रूम में घुसने की कोशिश ना करें। आप बस वहाँ से आप जाते हो तो बस इंफॉर्मेशन निकालो, क्योंकि गूगल इज ओनली 4% ऑफ द वेब, जिसको हम सरफेस वेब बोलते हैं। गूगल से जितना भी हम एक्सेस कर पाते हैं वो बस 4% का ही एक्सेस कर पाते हैं, 4% का वेब। तो अगर उससे ज्यादा रहता है तो अपने को जाना पड़ता है डीप वेब और डार्क वेब में। जैसे डार्क वेब पे जो एक वो साइट है रेड रूम करके, बिल्कुल, तो उस पे भी अगर हम जाते हैं तो हम हैक हो सकते हैं। देखो रेड रूम, डार्क रूम, इस सब में आप इतने इजीली जा भी नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि उनके लिए एडिशनल लिंक्स होती है, और वहाँ पर भी FBI, इंटरपोल, CIA ये सब रहते हैं, तो वो भी बहुत सारे इनको ब्लॉक करते रहते हैं। तो आप सिंपली उनको ऐसे विजिट नहीं कर सकते, बट अगर आपको एडिशनली मिल जाता है तो आप बिल्कुल वहाँ पे हैक हो सकते हो, क्योंकि डार्क वेब पे वैसे भी नॉर्मल लोग विजिट नहीं करते, वहाँ पर बस हैकर्स ही होते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप कभी भी वहाँ पर ना जाए, लाइक आप जाओ बट बस इंफॉर्मेशन गैदरिंग करो, आपको जो चाहिए वो फटाफट लो और वहाँ से लाइक एग्जिट करो, और जब भी उसको खोलो, यानी वो एक्सेस की जाती है टोर ब्राउज़र से, तो उसको कभी भी पूरे वेब में ना खोलो। और अगर आपको इसकी एडिशनल कुछ भी चाहिए तो आप मुझे बाद में पिंग कर लेना, क्योंकि ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा हमारे वेबिनार से, तो इससे हम बात नहीं करते हैं। सर मैं आपको बाद में कांटेक्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल।
आप कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ सर कि जो फिशिंग वेबसाइट्स होती है, लाइक फिशिंग कितनी इजीली हो जाती है और कितना इससे लॉस हो सकता है। अगर आप कहो सर, अच्छा सर आप ओटीपी के बारे में पूछ रहे थे सर, तो मैं पहले ओटीपी के बारे में बता देता हूँ सर। तो ओटीपी के सर आप उसके जो मेनली हार्म्स है कि वो डेटाबेस है वो डार्क वेब पे अपलोड हो गया और वहाँ पर मोस्ट ऑफ द हैकर्स भी रहते हैं और आपका डेटा बेचा जाता है। डेटा से यूज होता है, जैसे सर आपने गूगल के ऊपर एक मोबाइल फोन सर्च किया, अब गूगल का एक डेटाबेस में आप चला गया कि आपको एक मोबाइल फोन चाहिए इस मॉडल का। अब आप नोटिस करते होंगे सर कि आपको हर जगह, आप फ्लिपकार्ट खोल रहे हो तो भी वो आगे दिख रहा है, अमेजोन खोल रहे हो तो भी आगे खुल रहा है, फेसबुक भी खोल जा रहे हो तो भी आपके वो स्लाइड्स में आ जा रहा है। तो वो सर एक डेटाबेस बना हुआ है जिसके अंदर सर एआई के थ्रू, जैसे आप जो बोलते हैं सर मशीन लर्निंग के थ्रू एक लूप जनरेट हो जाता है और वो आपको हर चीज पे दिखता है। तो सर ये एक हार्म भी है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हर जगह शेयर हो रही है, आप नहीं चाहते फिर भी आपकी जो प्राइवेसी है वो डिस्क्लोज हो रही है आपको बिना बताए। तो ये एक बहुत बड़ा लॉस है। और ओटीपी के लिए सर मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ सर कि आपको बिना बताए, सर आप देखते हो कभी नोटिस करते होंगे आपके पास ओटीपी आ रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है सर कि ओटीपी बाईपास भी हो जाते हैं बहुत बार। तो आप जैसे किसी भी मैलिशियस लिंक पे गए, आपने मैलिशियस लिंक के ऊपर सिंपली क्लिक किया तो वो आपको एक सोर्स मिल जाता है कि आपकी वो एक क्रेडेंशियल्स हैक कर सके या फिर आपका ओटीपी बाईपास कर सके, क्योंकि सर हैकिंग टू वे कम्युनिकेशन है, सिंगल वे नहीं है। अगर आप गलती नहीं करोगे तो हैकिंग पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है सर। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ सर कि आप जो भी सर को इंटरेस्टेड हो कि मेरे ऊपर आप टेस्ट कर सकते हो, तो सर मुझे आपका बस फ़ोन नंबर यहाँ पे नोट में दे दीजिए। मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखाता हूँ सर। आपके फ़ोन नंबर को मैं एट ए टाइम पे आप जितनी वेबसाइट्स बोलोगे उनके ऊपर लॉगिन करवाऊंगा विद इन 10 सेकेंड्स। तो आपके पास आएंगे सर उनके ओटीपी। सिंपली सर कुछ भी नहीं कर रहा मैं सर, मैं साइबर फोरेंसिक्स से हूँ तो मैं एक एथिकल भी हूँ सर, कुछ एथिक्स है अपने, तो मैं कुछ भी ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिनसे आपकी प्राइवेसी हर्ट हो। तो सर प्लीज कोई भी अपने फ़ोन नंबर डाल सकता है जिसको हो कि आप मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हैं। Anybody from this DITF group can share their number to Niranjan, maybe Kiran ji or Khushi or maybe Manan, you are on the call. You can share your number. You will be having a part of the demonstration. Sir, actually, it's not my personal number. It's my mother's number. So yes, Devesh ji sir has shared their number. Maybe Niranjan, you can see on the chat box. Niranjan, phone number on the screen, please. No sir, I can't see that. You need to go on the chat box. Maybe let me. Sir, I'm on the chat box. The number is 91677. Wait a second, sir. Note it down. Wait a second. Just a second. Yes, sir. 91677. 91677. 67699. 67699. Yeah. Sir, 91677. Okay, sir. Sir, I am redirecting you to 50 websites. ठीक है सर। सर एक बार सर मैं परमिशन लेना चाहूँगा सर, आपकी परमिशन है? Yeah, go ahead. Yeah, go ahead. ठीक है सर। सर क्योंकि 50 मैसेजेस आएंगे तो सर कोई दिक्कत नहीं है ना, आपका कोई इम्पोर्टेंट मैसेजेस हो? देख लेना भाई। सर ओके सर, आई एम जस्ट सेंडिंग यू सर 20 मैसेजेस। 61325. Okay, sir. There it is. At the rate. Sir, are you receiving anything? आता है at the rate में.
हाँ IGOU.com. ओहो बस भाई How many messages you got? Audience को बताएं. up to 13. Okay. So similar demonstration I got from Niranjan while trial calls. I got several tens of SMSs from different shopping shop. I was annoyed ये सब भी हैक नहीं है, कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा. तो निरंजन assured me कि कोई दिक्कत नहीं. I am ethical hacker, so I can prevent it. Sir, like SMS bomber, they are also call bombers, ना? हाँ, ये SMS बम्पर भी हो सकता है, बट ये SMS बम्पर नहीं था. मैंने बेसिकली क्या किया, मैंने एक लिंक बनाया सर के फोन नंबर को, कुछ एक आपका भी एक सॉफ्टवेयर है, मैं आपको दे दूंगा. तो उसके थ्रू मैंने क्या किया कि सर के दो नंबर है, उनको 15 वेबसाइट्स के ऊपर रिडायरेक्ट करवाया अलग अलग करके. तो उन्होंने जब उस नंबर से साइन इन किया तो एक OTP जनरेट हुआ है जो सर के पास गया है. बट बेसिकली जब तक मेरे पास वो OTP नहीं है तो मैं सर का एक्सेस नहीं ले सकता. ठीक है, लेकिन OTP बाईपास के भी बहुत से मेथड होते हैं, तो उसके थ्रू भी मैं उससे एक्सेस ले सकता हूँ. तो ये भी हमारे लिए एक हार्मफुल है, और ये भी एक डाटा डिस्क्लोजर की ही दिक्कत है कि हमारा डेटा जो बिखरा हुआ पड़ा है तो कैसे कैसे यूज हो सकता है हमें प्रॉब्लम देने के लिए. भले ही इससे कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे दिवेश सर है, दिवेश सर के पास 1000 जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस पड़े होंगे जिनको भी वो शायद सही से रीड आउट नहीं कर पाते होंगे. लेकिन जैसे ही मैं 1000 मैसेजेस ऐसे फ्रॉड वाले भेज दूंगा तो उनके जो 2-4 भी अगर अच्छे इंपॉर्टेंट वाले हैं जो उनको लाइक जिनकी उनको अच्छे से नीड होगी या उनके बिना उनको दिक्कत हो बहुत सारी, तो वो चुप जाएंगे, तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी उनके लिए. तो ये एक लॉस है सर कि आप अपने जो फ़ोन नंबर हर जगह देते हो उसका एक बहुत बड़ा लॉस हो जाता है. निरंजन, अनदर क्वेश्चन. मेरे पास कुछ एप्स के अंदर व्हेन आई गिव द परमिशन की एक्सेस और अलो फॉर सेवरल पेमेंट के लिए, जैसे पेटीएम ऑटोमेटिकली OTP को एक्सेस करता है, या कोई अदर वेबसाइट्स हैं, जैसे मान लो ओला में ऐप यूज करता हूँ, और वो ऐप भी आपकी OTP को डायरेक्टली प्रोसेस करता है. तो क्या ये इस तरह से अलो करना मुझे इज रिकमेंडेबल, और शुड आई प्रिवेंट दिस कि जब OTP आएगा तो मैं खुद देख करके वहां पे एंटर करूंगा? व्हाट इज योर रिकमेंडेशन? सर OTP का सीन ये है कि जब आप किसी को भी ऑटो अलाउ कर देते हो तो बेसिकली क्या करता है, वो आपसे बाद में पूछेगा नहीं, तो इनके आपको लगेगा कि हाँ ये मेरे लिए एक कन्वीनियंट वे है कि मुझे कुछ वापस डालने का नहीं, ऊपर से देखूंगा फिर मैं डालूंगा, मेरे लिए कन्वीनियंट हो गया. ठीक है सर, बट क्योंकि सर वो OTP है तो उसके लिए आपको इतना सोचने की वजह जरूरत नहीं होती, क्योंकि सर वो एक टाइम के बाद वापस रन नहीं होगा. तो OTP थोड़ा फिर भी ठीक है, क्योंकि सर गूगल है, गूगल को हम फिर भी इसका थोड़ा सिक्योर मान के चलते हैं. अगर कोई गूगल को हैक करेगा इससे अच्छा वो रहेगा कि उसके लिए कि वो आपके फोन को हैक करे, वो उसके लिए इजी पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि सर गूगल के पास बहुत सारे टेक्नीशियंस होते हैं, बट सर हम ऐसा नहीं है कि हम अपने फोन के ऊपर 4 टेक्नीशियन को बिठा सकते हैं, ऐसा हम नहीं कर सकते. तो हो सकता है सर वो आपके लिए कन्वीनियंट रहे तो उसके लिए आप कर सकते हो, बट सर जो हम परमिशंस देते हैं किसी को भी एप्लीकेशन को, वहाँ थोड़ा ध्यान रखने की चीज़ है. अपन जैसे सर भले ही अपने प्ले स्टोर से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड किया, बट कुछ एप्लीकेशन सर ऐसे होते हैं कि आप जब तक उसको सारी परमिशन नहीं आपकी प्राइवेसी सबसे ज़्यादा हर्ट ही गूगल करता है. तो वहाँ पे सर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए. जैसे सर एक कैलकुलेटर है, आपने कैलकुलेटर का ऐप डाउनलोड किया, आप कैलकुलेटर की क्या ही नीड सर कि वो आपकी कॉल हिस्ट्री को एक्सेस करे, या फिर आपके जो डेटाबेसेस है, आपके जो एल्बम्स है उनको एक्सेस करे. तो इससे अच्छा सर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उन एप्लीकेशंस को ना यूज़ करके कोई दूसरा एप्लीकेशन ढूंढ ले, उसके लिए कोई अल्टरनेटिव ढूंढे. यानी कैलकुलेटर है सर, तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द जो आपके लिए बनाए गए हैं, जैसे सर अगर आप MI का फ़ोन यूज़ करते हो तो जो ऑलरेडी एप्लीकेशंस आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड आते हैं वही आप यूज करें. कोई भी एडिशनल कैलकुलेटर सर कौन यूज करते हैं, कुछ जैसे सर आजकल कैलकुलेटर के अंदर वोल्ट आता है, तो लोगों को लगता है कि इसमें मेरी जो फीचर्स है वो सेफ रहेगी. नहीं सर, ऐसा नहीं होता है.
वो भी रहता है। उसमें क्या रहेगा सर, अगर आप उसको रीसेट करोगे, आप उसको डिलीट करके वापस इंस्टॉल करो तो वो आराम से रीसेट हो जाता है, और आपकी जो फाइल्स है वो उनके पास एक छोटा बैकअप रहता है, उसके लिए आपको वो फाइल्स भी सीधी सीधी आपके दिखा देगा, तो आप उनसे सिक्योर नहीं हो। तो आप बेसिकली सर उनको यूज ना करें। अभी सर प्ले स्टोर के ऊपर भी कुछ 13,000 समथिंग एप्लीकेशंस है जो वल्नरेबल थे, उनको हैकर्स ही एक्सेस कर रहे थे। तो सर कंप्लीटली तो आप कहीं भी सिक्योर नहीं हो, बट आप अपनी इतना ही कर सकते हो कि सर जो परमिशंस दे रहे हो उनके ऊपर आप थोड़ा ध्यान रखें। Yes, Niranjan. So very good. I have some pertinent questions from the audience. Can we go on the questions, answers? Is it right time, Sushil ji and Niranjan? बिल्कुल सर। So one question from one of the audience is what is the password management? So what is the right methodology to give the password to the different sites or apps? So what is your opinion on this? सर सबसे पहले जब भी आप कोई पासवर्ड क्रिएट करें तो उसके अंदर सर जैसे अभी अपन 2 या 3 अगर वर्ड का आपने 3 कैरेक्टर का या 5 कैरेक्टर का या 7 कैरेक्टर तक अगर हम कोई भी यूज करते हैं तो सर उसको ब्रेक होने में मिनिमम आपको लगेगा उसकी 15 से 20 मिनट लगेगा उसको क्रैक करने में। अगर 2 या 3 वर्ड का है या फिर 5 वर्ड का है तो विद इन ए सेकेंड हो जाएगा सर वो। क्योंकि सर जो क्रैक होता है वो बेसिकली किया जाता है सर ब्रूट फोर्सिंग से। ब्रूट फोर्सिंग बेसिकली क्या है कि वो एक कॉम्बिनेशन बनाता है। जैसे आपने 2 कैरेक्टर्स लिए तो सर 2 कैरेक्टर्स के लिए कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं सर? 1 2 2 1 दैट्स इट सर, इतना ही। तो वो जल्दी से पकड़ सकता है आपको, लाइक वो वहीं क्रैक हो गया। तो आपको एक तो सर जो पासवर्ड हो आपका 8 डिजिट प्लस होना चाहिए, और उसके अंदर कॉम्बिनेशन जो है सर वो रखिए कि उसमें एक छोटा कैरेक्टर भी हो बड़ा कैरेक्टर हो। बेसिकली सर सिंबल्स जो आप लगाओ, ठीक है, वो थोड़े ज्यादा एडिशन में यूज कीजिए, यानी 2 से 3 वो जो सिंबल्स है वो यूज करेंगे आप तो सर आप ज्यादा सिक्योर रहेंगे। तो इसमें सर आप ये जो पासवर्ड की मेथोडोलॉजी आप यूज कर सकते हो, आप काफी हद तक सिक्योर हो जाओगे। क्या पासवर्ड को सेव करके मुझे किसी टेक्स्ट फाइल के अंदर सेव करके रखना चाहिए? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। इसके अंदर आपका क्या रहता है, जो वेंडिंग थेफ्ट रहता है वो उसकी बढ़ जाती है। जैसे कि सर सुशील सर ने बताया था कि जो वेंडिंग थेफ्ट होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं। तो उसमें सर आपने किसी भी वेंडर के पास अपना पीसी रिपेयर होने के लिए दिया, और जब वो उसको रिपेयर कर लेगा तो सर वो पक्का उसको चेक करेगा, एक बार उसके थ्रू वॉक थ्रू पक्का करेगा कि इसमें क्या क्या है। और सर उसको अगर आपको पासवर्ड्स मिले, आपकी जो क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स है सर, तो हो सकता है कि सर वो या तो ना यूज करे, बट सर जैसे कि वेंडिंग थेफ्ट सबसे ज्यादा है तो ज्यादा चांसेस रहते हैं वो यही रहते हैं कि वो आपका प्राइवेट डेटा है उसको पक्का क्लोन करेगा, जो जो उसको चाहिए होगा। उसको लगा कि हाँ ये मेरे बेनिफिट से हो सकता है, इससे मेरे को पैसे की अर्निंग हो सकती है, या फिर इससे मुझे चाहे कुछ नहीं तो मैं फन ही कर जाऊंगा इससे, तो वो भी सर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो सर ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। Very good, Niranjan. So very good information you have given. So I have now some questions to the audience. So my first question is what is cyber security means? Can anyone answer on this, please? Whether Sir, safeguard computer and laptop mobiles. Manan, any other answer if the audience have if have different opinion? सुरेंद्र जी आंसर करने का कुछ मिलेगा? बिल्कुल आपके लिए सरप्राइज है। होगा सर? ठीक है, करेक्ट आंसर, मनन ने करेक्ट आंसर दिया है, सेफगार्ड कंप्यूटर एंड लैपटॉप एंड मोबाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जांपल ऑफ आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग, which refers to computer network, printers, desktop और home routers। मनन के अलावा कोई दूसरा आंसर करेंगे? सर ऐसे तो मैं जीतूंगा ही नहीं। Let other audience also get chance. Manan, if anybody do not answer, you can answer. It is computer network. Thank you. It is correct answer. Spoofed websites meaning. What is mean of the spoofed website? When we were talking and we are doing during the phishing web page. This information. The finishing web page. Thank
you, Asopa ji. This is the correct answer. So these were the 3 questions only we prepared. Maybe Niranjan, if you have some more questions, you can ask to the audience, or Sushil ji. No, we would love to hear the audience. If audience can have more queries, they can ask us. Okay, so 3 different answers from 3 different people, but Manan's participation whole webinar was very good, and maybe we can declare him as winner. So Manan, congratulations. Thank you, sir. So that means Manan, Kiranji, your voice is not clear, and probably it is cracking at my side. Maybe Sushilji, if you can hear, you can answer him. No, the voice is not clear. I couldn't hear. Okay, so maybe I'll bring Nikhilji in this call to take the session ahead. One second. Somebody had asked. Kiran, Mr. Kiran is there. He is asking about this. What is the Khushi Sharma is asking what is the incognito mode of third party. Khushi, I had given you the screen. I've shared the screenshot also of the incognito mode. When you go into your Chrome browser, on the right hand side, you will get the option to click onto the incognito mode. So please try that. In case of any other query, you can mail us also onto the dadich@eitfindia.org. Thank you. Hello. Any question unanswered, please you can ask, unmute yourself, and you can ask the question if we have not covered in this session. हेलो Yes, please. सर, एक बार देवेश सर ने मुझसे कहा था कि जैसे मैं बैंकिंग वेबसाइट यूज करता हूँ तो वो कहाँ तक सेफ है, उनकी उनके थ्रेफ्ट्स क्या है, उनके कैसे हैं. तो सर देवेश सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, आप कौन सी वेबसाइट, कौन सा आप कौन सी बैंक एक्सेस करते हो सर? Sir, what is my price? I use SBI. SBI सर? हाँ जी. मैं SBI को क्लोन करने वाला हूँ सर. SBI की पूरी वेबसाइट मैं उसी को पूरा क्लोन करने वाला हूँ. आपको दिखा देता हूँ कितनी सिक्योर है. सर जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सिक्योरिटी इज ओनली ए मिथ, जो कि सबको एक पकड़ा दिया गया है कि हाँ हम आपको सिक्योर करेंगे, हम आपको सिक्योर करेंगे, बट सिक्योरिटी बोल के सर कुछ ऐसा होता नहीं है कि आप सिक्योर हो. तो सर मैं दिखा देता हूँ आपको, मैंने कर दिया सर उसको क्लोन. Niranjan, if you can share your screen, then it would be good. ओके सर, बिल्कुल. Is my screen is visible, sir? Yes, I can see my own picture on your screen. हाँ सर. तो सर ये है ये है SBI की वेबसाइट सर. इसका आप लिंक चेक कर सकते हो सर, onlinesbi.com. ठीक है सर. और ये जो वेबसाइट है सर, ये है जो मैंने क्लोन किया सर. अब सर ये वेबसाइट जो है ये चल उसी के सर्वर पे रही है. अगर सर मैं किसी पे भी क्लिक करूंगा तो ये खुलेगा, बट ये टोटली क्लोन्ड है. कहीं पे भी अगर किसी पे भी जाता हूँ तो मैं अपने ही सर्वर पे काम कर रहा हूँ, जो सर्वर सर मेरा पीछे चल रहा है, आप चेक कर सकते हो सर. Kiran sir, I have sent it to you my details. सर ये एक मेरा सर्वर चल रहा है पीछे, जो लोकल होस्ट का सर्वर है मेरा, और इसके ऊपर जितने भी ट्रेस है सर, जैसे कि यहाँ पे क्लिक किया है मैंने, इसके ऊपर क्लिक किया है, जैसे इनकी फाइल खोल ली, तो सर हर एक चीज मेरी जो है वो यहाँ रिकॉर्ड हो रही है. ठीक है सर. तो जो क्लोनिंग होती है उसमें आप जाओगे सर, तो आप कहीं पे भी अगर पासवर्ड भी एंटर करोगे तो वो मेरे पास बेसिकली लिखा हुआ आ जाएगा. और आजकल सर एक डिवाइस चलता है की लॉगर के नाम से, तो वो बेसिकली क्या करता है सर कि जो भी हम इनपुट करते हैं, यानी वो जो हमारा कीबोर्ड होता है उसी को एक्सेस कर लेता है उसका. सर जैसे मेरा भी स्क्रीन ऑन है तो इसमें भी सर दिखा सकता हूँ कि जो मैं ओएस यूज कर रहा हूँ उसके अंदर एक इनबिल्ट वो आता है की लॉगर, इसका नाम है XSpy.
सॉरी सर, ये मेरे में इंस्टॉल्ड नहीं है, तो मैं इसको पहले इंस्टॉल कर देता हूँ। निरंजन, ये स्पूफिंग साइट है या इट्स क्लोनिंग एंड स्पूफिंग में क्या डिफरेंस हुआ? सर स्पूफ और क्लोन में मतलब सेम सिमिलर ही चीज है सर, कि मैंने स्पूफ मान लो सर कि आपके लिए मैंने सेंड किया मैंने, और आपको एकदम सिमिलर लग रही है, ठीक है सर। और क्लोनिंग सर मैंने उसी के लिए सर दूसरा वर्ड की यूज किया है, मैंने उसको क्लोन उसके जैसा एक डुप्लीकेट वेबसाइट बना दी है, जिसको हम दूसरे टर्म्स के अंदर स्पूफ वेबसाइट कहते हैं। ठीक है निरंजन, लेकिन जब मैं वेब यूआरएल में जब जाता हूँ ब्राउजर के अंदर, तो वहां पे नॉट सिक्योर लिखा हुआ आ रहा था। देयर आर सम साइट को मैं एक्सेस करता हूँ तो वहां पे एक डिजिटल लॉक साइन आता है, ग्रीन, पूरा जो एड्रेस बार है पूरा ग्रीन हो जाता है। इसके बारे में बताएं कौन सी वेबसाइट है जहां आता है, जैसे अभी नहीं आ रहा है, यहाँ पे नॉट सिक्योर लिखा हुआ आ रहा है, एक्सक्लेमेशन साइन लगा हुआ है, वार्निंग साइन लगा हुआ है। क्योंकि सर इसके ऊपर SSL एक्टिवेटेड नहीं है। बेसिकली सर SSL क्या करता है, SSL एक सिक्योरिटी गार्ड है, जिससे कि जो हमारी इसमें कॉन्सेप्ट होता है सर प्राइवेट की और पब्लिक की का, जब भी हम वहां पर SSL जहां लगा हुआ है वहां पर इसका काम करता है कि जब भी हम कुछ किसी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे होते हैं, तो हमारे पास एक प्राइवेट की रहती है, एक पब्लिक की रहती है, और सर्वर के पास भी सेम की रहती है, और वो उनका एक एक्सचेंज होता है। तो वहां पर एक सिक्योरिटी रहती है, यानी जब तक कि आपके पास दोनों कीज नहीं है तब तक बीच में उस डेटा को कोई देख नहीं सकता, वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में रहता है, उसका रियल फॉर्म में नहीं रहता। लेकिन जैसे कि सर इस वेबसाइट के ऊपर नॉट सिक्योर है, इसमें SSL एक्टिवेटेड नहीं है, तो आप इसका जो डेटा है वो बीच में स्नैप किया जा सकता है। आप बिल्कुल उसको देख सकते हैं कि जैसे जा रहा है कि नहीं जा रहा है सर। जैसे कि मैं आपको एक टूल आता है सर, तो इसमें इंस्टॉल होगा, हाँ सर, ये वायरशार्क के नाम से एक टूल है, जो बेसिकली क्या करेगा सर कि अब मैं अगर कुछ भी इसमें चलाऊंगा तो वो मेरा नेटवर्क बेसिकली स्नाइप करेगा, यानी वो एक मीडिएटर है, वो बताएगा कि आप कौन सा यूज कर रहे हो, आप कहाँ क्या क्या यूज कर रहे हो। लाइक सर मैं वॉइस ऑन कर देता हूँ। सर काली लिनक्स में एक वो होता है फॉरेंसिक टूल्स, उनमें उनका कैसे यूज कर सकते हैं हम? वो मैं आप मेरे को एडिशन में कॉल कर लेना, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे क्या होता है सर। जैसे अब ये है, अब मैं अगर इसके ऊपर कोई भी पेज खोलता हूँ, फॉर एग्जांपल सर मैंने ये एक CRM का पेज खोला, तो अब आप सर इसके ऊपर देखेंगे तो यहाँ से सर रिक्वेस्ट जनरेट हुई है, ये दिखा रहा है कि आपने यहाँ इसको एक्सेस किया है, इतनी आपकी रिक्वेस्ट जनरेट हो रही है, ये पब्लिक की यहाँ एक्सचेंज हो रही है, प्राइवेट की एक्सचेंज हो रही है, ये पूरा हर चीज़ दिखाता है। बेसिकली सर उस चीज़ से क्या होता है कि स्नाइपिंग हो जाती है। अब इसके अंदर से अगर HTTPS है तो वो आपका जो डेटा हो रहा है सेंड हो रहा है वो एज सिक्योर मैनर में हो रहा है। लाइक वो बीच में ये अगर स्नाइप भी करेगा तो वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं होता है, वो एनक्रिप्टेड होता है, और उसको डिकोड नहीं कर पाएंगे उस डेटा को। हाँ, एनक्रिप्टेड डेटा है, यू कांट डिकोड बाय स्नैपिंग। स्नैपिंग का मतलब आपने कैमरा लगा करके देख लिया उसको, डेटा तो आपके पास आ गया, लेकिन यू कांट डिकोड इट, वो अलग लैंग्वेज में दिखता है उसको, सीधी भाषा में। ये समझ वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं होता सर। जैसे आजकल अब गूगल हैकिंग डेटाबेस है सर, वो क्या करता है कि आपकी कोई भी अगर वेबसाइट इनसिक्योर है तो गूगल एक स्कैन चलाता है, जिसका सर उसको वीकली समझ लो या मंथली समझ लो, वो उसका एक सिस्टम है। वो क्या करेगा, आपकी वेबसाइट्स अगर हैक हो रही है तो वो उसको एक गूगल हैकिंग डेटाबेस में डाल देगा, और वहीं से ही हैकर्स वहां से उठाते हैं सर। तो मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ सर। ये एक वेबसाइट है सर, इसके ऊपर आपको मिलेंगे सर कैमराज, जो कि सर पहले से हैक हो चुके हैं सर। ये देखिए, आपको इसमें ये भी नहीं सर, आपको बस दूसरे कंट्रीज के मिलेंगे, इसमें आपको इंडिया के भी मिलेंगे सर। हो सकता है सर जो देवेश सर का है या फिर आपका घर का कैमरा है वो भी इसमें मिल जाए। बिल्कुल सर। सर ये देखिए सर, ये मुंबई का कैमरा है, अभी तो सर ये पूरा खुल जाएगा। क्या कैमरा, ये क्या वेबसाइट बताया आपने निरंजन? IP कैमरा? नहीं सर, insecurecam.org सर। ये मुंबई का है, मुंबई की इसका ये लॉन्गिट्यूड और ये लैटिट्यूड, यानी सर उसकी पूरी जो लोकेशन है वही हमको दे दी इसने केम की, और केम भी चल रहा होगा सर। जैसे कि सर ये चल रहा है नीचे वाला, ये शायद ये मुंबई वाला सर ये चल रहा है
सर व्हाट्सएप का ओटीपी कैसे हैक हो सकता है विद रिमोट एक्सेस से? भाई तुम्हारे इरादे मुझे कुछ सही नहीं लग रहे। सर मुझे हैकिंग अच्छी लगती है। No ethical hacker in future, so he is a potential candidate for the employers. मनन का नाम नोट कर लें आप लोग। बिल्कुल सर। तो सर ये जो एक्सपाई मैं आपको बताया था ये हो चुका है एक्चुअली। तो सर जैसे ही मैंने इसको रन किया, अब अगर मैं कहीं पर भी आके, जैसे यहाँ मैं दिखता हूँ DITF, ठीक है सर, DITF इंडिया या कुछ भी सर, इतना कुछ भी लिखा। अब सर जब मैं उस टैब के ऊपर जाऊंगा तो ये देखिए सर, जो भी मैंने किया है वो यहाँ लिखा हुआ आ गया। बेसिकली सर क्या है, मेरा जो कीबोर्ड है वही हैक हो गया सर। इनको बोलते हैं कर्नल बेस्ड ये अटैक्स। तो ये बेसिकली क्या करता है, जो लैपटॉप का एक कर्नल होता है, कर्नल यानी कि जब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को बीच की जो इंटरेक्शन करवाता है, उनको समझाता है कि तुम इसके दबाने पे ये करना है, तो इसने उसी को ही हैक कर लिया, ये उसके ऊपर अटैक होता है। तो ये करता है। Very good information, Niranjan. I really appreciate the information you are sharing. I never seen this kind of information. The kernel level hacking you are showing us, mind blowing. Sir, if you have any questions from the audience, please. Lots of different example Niranjan has covered today. So, any other question, please? What is the risk in the downloading? What is the next question? Savitri ji has asked one question. What is the risk in downloading on phone or on the iPad? The risk in downloading banking apps on phones. So basically मैम, अगर आप बैंकिंग एप्स डाउनलोड करते नहीं, क्योंकि बैंकिंग आजकल हम लोग डिजिटल एरा की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम लोग इससे पीछे नहीं हट सकते कि हम ये करें या नहीं करें, हमको ये करना ही रहेगा। क्योंकि जैसे मेरा केस में भी बताऊं तो मैं केस लेके घूमना प्रेफर नहीं करता। मैं अगर कहीं भी चाय पीने भी जाता हूं तो मैं सिंपली पेटीएम यूज करता हूं, और हम सब करते हैं, तो हम लोग इनसे भाग नहीं सकते। बट जहां आती है डाउनलोडिंग की बात, तो वहां एक चीज ध्यान रख सकते हैं कि बेसिकली हम लाइक सिक्योरिटी इज ए मिथ, बट कुछ प्लेटफॉर्म्स है जो काफी हद तक सिक्योर है। जैसे कि हम गूगल प्ले स्टोर लेते हैं, तो आप एक ऑथोराइज्ड जो जगह है वहीं से ही डाउनलोड करें, कहीं भी थर्ड पार्टी से आप डाउनलोड नहीं करें। और जब भी किसी को परमिशन दे तो पक्का चेक कर ले कि ये इस परमिशन की क्या करेगा, इसकी जरूरत कितनी है। आजकल एक ऑप्शन आता है जैसे सर मैप है, मैप को मैम वहाँ पे आप जब भी करोगे तो वो आपको एक्सेस मांगता है कि आपकी एक्सेस चाहिए, तो उसके अंदर आपको वो एक चीज देगा कि आप, एक तो होगा सर ये अलाउ ऑल द टाइम, एक होगा अलाउ ओनली दिस टाइम, और एक होता है अलाउ ओनली व्हेन यूजिंग दिस ऐप। तो यहाँ पर आपको देखना है कि इस एप्लीकेशन को कितनी देर तक जरूरी है। अगर आपको टेम्पररी जरूरत है तो ओनली दिस टाइम कीजिए। अगर आपको करता है कि हाँ ये एप्लीकेशन मुझे बार बार चाहिए होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आरोग्य सेतु है, आरोग्य सेतु को ब्लूटूथ की चाहिए होती है, ब्लूटूथ प्लस लोकेशन, तो हाँ उसके लिए आप अलाउ ऑल द टाइम कर सकते हो। बाकी जैसे ब्लूटूथ है तो ब्लूटूथ के लिए ब्लूकॉर्न नाम का एक अटैक होता है, इससे क्या है कि आपका जो डेटा है वो स्टील हो सकता है, आपके फोन में कोई मेलवेयर सेंड कर सकता है, तो आपका ब्लूटूथ ज्यादा देर ऑन नहीं रहना चाहिए, तो बी केयरफुल अबाउट इट। Okay, Niranjan. One more point I will highlight that even if you have downloaded the app, while using that app, you should go for the two-way authentication also, like the OTP based authentication, your fingerprint on your mobile SIM. बिल्कुल सर, टू फैक्टर जो ऑथेंटिकेशन है ये बहुत अच्छा फैक्टर है आप खुद को सिक्योर करने के लिए। ये सर ने बहुत सही बताया, मैं सर को थैंक यू बोलूँगा सबसे पहले तो, क्योंकि ये मेरे दिमाग से निकल गया था। अब एक क्वेश्चन है, आर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैकेबल, ठीक है। तो सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी अभी बूम पे है, जैसे कि अभी बिटकॉइन वोटकॉइन ज़्यादा चल रहा है, तो क्रिप्टो करेंसी हैकेबल है या नहीं। क्रिप्टो करेंसी हैकेबल ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक सिक्योर कोई भी नहीं है, बट इन केस ऑफ क्रिप्टो करेंसी जैसे पेटीएम है, पेटीएम भी एक क्रिप्टो करेंसी है, बट पेटीएम को हम एज ए क्रिप्टो करेंसी में क्यों नहीं लेते, क्योंकि पेटीएम भी वर्चुअल है तो क्रिप्टो करेंसी होना चाहिए।
बट पेटीएम मार्केट की वैल्यू के साथ फ्लक्चुएट नहीं करता। पेटीएम ऊपर नीचे नहीं जाता है जैसे कि शेयर मार्केट या इनमें जाता है। तो हम उसको इसलिए क्रिप्टो करेंसी में लाइक जो जैसे बिटकॉइन है तो बिटकॉइन फ्लक्चुएट करता है तो हम उनको इनकी स्ट्रेटजी में नहीं रखते हैं। अब ये हैकेबल है या नहीं है, जैसे कि बिटकॉइन है तो बिटकॉइन एक 16 डिजिट की पीजीपी की यूज करता है जो आपकी यूनिक है। तो इनको मैं काफी हद तक सिक्योर मानता हूँ तो किसी को कुछ पता नहीं होता कि ये आपकी पीजीपी की ये है। और इनकी माइनिंग या जो भी बिटकॉइन होता है, बिटकॉइन आप अपने घर के अंदर रख सकते हो, अपना एक डेटाबेस बना सकते हो उसको अलग से। तो बिटकॉइन जैसे आपकी पीजीपी की है तो आप टाइम टू टाइम पीजीपी की चेंज भी कर सकते हैं। तो ये काफी हद तक सिक्योर है रिगार्डिंग जो बैंकिंग में यूज करते हैं अभी उनसे, अकाउंट नंबर्स और इनसे। तो सर आप सर अगर हम बिटकॉइन माइन करेंगे तो जो पुलिस का साइबर सेल होता है वो हमें पकड़ेगा नहीं? देखो, बिटकॉइन आप माइन करोगे तो साइबर सेल आपको पकड़ेगा नहीं, ठीक है। बट क्योंकि बिटकॉइन इंडिया के अंदर लीगल नहीं है, क्योंकि डेटाबेस नहीं रहता है, आप कहीं पर भी इसको माइन करोगे तो कुछ गवर्नमेंट को कुछ ज्यादा भनक इसकी रहती नहीं है। तो आप उसके अंदर ये रह सकता है कि आप पुलिस से छुपा रहे हो, आप इसका टैक्स पे नहीं कर रहे हो, आप आउट टू आउट ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो इन अदर कंट्रीज के अंदर। तो वो एक, क्योंकि आप एक देश के अंदर रह रहे हो और उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि आपको कुछ टैक्स पे करना रहेगा, ये कर रहे हो, आप नहीं कर रहे हो तो इसके लिए आप उसके रूल्स तोड़ रहे हो। जो भी डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है उसके खिलाफ भी है, तो आप ये नहीं कर सकते। इसके लिए आपको जेल भी हो सकती है और मैं भी फांसी वाला सीन भी होता है। बट इंडिया के साइबर क्राइम जो है वो जो लॉज है वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर आप ये चीज अमेरिका में या यूएस में करते हो तो आपको श्योरली फांसी होती है। बिल्कुल निरंजन, आपने सही बोला। इंडिया में डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 2019 में एक बिल प्रपोज हुआ है, अभी तक वो एक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ है। मे बी बाय 2022 और सो दिस मे बी एन एप्लीकेबल एक्ट इन द बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यूरोपियन वर्ल्ड के अंदर डेटा प्रोटेक्शन इज अ वेरी ऑफेंसिव एक्ट, और डेटा यूजर का डेटा को स्टील करना इज अ वेरी बिग क्राइम। जो डेटा यूजर है उसका डेटा कंट्रोलर, वो ही इज द डेटा कंट्रोलर। और इफ सम साइट और any website or any app or any company is using or processing the data, वो that is a data processor allowed by that user। और ये डेटा प्रोसेसर अगर फर्दर किसी और को डेटा ट्रांसफर करता है तो ही इज द सब प्रोसेसर फॉर दैट डेटा फ्रॉम द डेटा कंट्रोलर। मैं एक यूजर हूं, मैं परमिशन देता हूं तो मैंने उसको डेटा को प्रोसेस करने की परमिशन दिया है। अगर वो किसी और को, सब प्रोसेसर को अलाउ करता है तो बिना मेरी परमिशन के नहीं दे सकता है, दैट इज एन एक्ट। और उस डेटा को अगर स्टील किया है तो मेरे पास फुल राइट है कि आई कैन क्रिमिनल पुलिस कंप्लेन में जा सकता हूं मैं। आई कैन बी सेफगार्ड बाय द गवर्नमेंट लॉ। जो अभी आईटी एक्ट 2000 एक्ट है वो अभी सीधा डेटा एक्ट बनने वाला है, उसी के अंतर्गत। तो दिन दूर नहीं है, अभी तक हम लोग सोशल मीडिया और दिस फॉरेन साइट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, अभी बहुत जल्दी स्ट्रिक्ट होने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच। मे बी निखिल, ओवर टू यू, so you can cover rest of the session please. Thank you, Surender ji, for passing the mic. As the speaker have mentioned in the webinar, because of this COVID pandemic thing, as the new normal established and the digital activities are continuously rapidly increasing in India. So I believe India is playing a leading role in digital world, and everyone should be aware of the topics which were discussed in the webinar today. With having said this, first of all, I would like to thank our panel speakers, Mr. Sushil Ji Dadich and Mr. Niranjan Ji Dadich, for a very detailed, well thought. I also want to thank our moderator, Mr. Surender Ji Acharya, for making this webinar very smooth by giving it necessary directions. Then I want to thank Mr. Khushi Ji for introducing the event and explaining all the different activities which our organization has conducted or will be conducting in the future. Now, I would like to thank the man with the vision behind this wonderful organization, our founder president, Mr. Devesh Ji Dadich, for continuously believing in all of us and giving us this platform to discuss and share our opinions and
Last but not the least, I want to thank our audience for continuously supporting us and being attentive throughout the webinar. With this, I also want to congratulate Manan for winning the award today after replying to the questions which we asked. Thank you.